Hello and welcome everyone to the post-market analysis and market view session for tomorrow by MentorBox. I hope you all have a profitable day today. So my name is Nikhil Doshi. I am a trader and mentor at MentorBox by StocksBox. Over the past 12 years, I have been trading stocks, futures and options using technical analysis. So without further ado, let's start today's video. So Nifty is down about 89 point today. At closing, it is down at 89 point at 17,764. And Sensex is closed at 334 point down at 60,506. And Bank Nifty is down about 125 at 41,374. So down entry today, even today morning market was on the gap down. If we see the Nifty chart, so this is the Nifty chart. So after opening on a gap down side, market throughout the day आज down ही रहा. You can see over here, यहाँ पे एक down खुला, उसके बाद it went down in the first half. After that एक बड़ी सी candle आई यहाँ पे, सबका stop loss यहाँ पे triggered किया and again it went down over here. So overall throughout the day it was down only. At the end it has again tried to go long, but it didn't have able to make a long. On Friday I told you on the daily chart, this is the daily chart of the Nifty, कि market ये trend line तोड़ेगा तो ही long है. So I was hesitating to give you a long on the Friday because market ये trend line को break करना important था. That's why I've told you कि market अगर ये trend line के ऊपर खुलेगा तो long कर सकते हैं और overall आप long जा सकते हो. So market यहाँ पे क्या हुआ, वही trend line के support में आज gap down खुला. And at the end, it has formed the bearish Harami pattern. Now, if you just check over here, as we seen last time as well, कि market जब भी वो trend line के support में अगर cross नहीं होता है, तो next day थोड़ा सा fall आता है. If you can just check here, जो last time हमने किया था, if you just say कि जो initial video, if you have followed my video, तो यहाँ पे आप check करोगे, तो यहाँ पे जो दो line था, there was a fall came here. So यहाँ पे एक जो फॉल आया था, सेम फॉल यहाँ पे एक्सपेक्टेड है. वन मोर थिंग, इफ यू कैन जस्ट चेक कि मैं यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ, जो उसको हम बोलते हैं चैनल. अगर चैनल ड्रॉ करना है तो यहाँ पे मुझे दो बॉटम के लेवल मैंने ज्वाइन किए, ओके, और यहाँ पे एक चैनल मिल जाता है. वो चैनल मैंने जाके यहाँ पे ये जो हाई बना है, ये जो लाइक ऑन द बजट डे का जो हाई बना है, वो हाई पे जाके अगर मैं रख देता हूँ, so market right now it is in this channel right now. तो ये चैनल के अंदर ही घूम रहा है मार्केट. एक रेंज हो गया है बिटवीन 17,300 टू 17,900. तो ये अभी यहाँ पे ओवरऑल जब तक ये चैनल नहीं तोड़ेगा, इधर अपसाइड इधर डाउन साइड, मार्केट यही चैनल में मूव करते रहेगा. तब तक एक बड़ा मूव जो हम निफ्टी में बोलते हैं, वो निफ्टी में बड़ा मूव नहीं दिखेगा. नाउ वी आर वेटिंग फॉर द 8th Feb को आरबीआई की पॉलिसी आएगी. So accordingly, like on the way कि RBI क्या decide करता है, जैसे Fed has increased the interest rate in this year, in 2023 का जो first Fed का meeting हुआ on last week, they have increased the interest rate by 0.25. So हमारा RBI क्या करता है, we need to check that. Overall chart wise सारी चीजें discount हो जाती है, so we don't have to worry. So right now मार्केट यही रेंज में घूमेगा जब तक ये रेंज को ब्रेक नहीं करेगा. इधर अपसाइड इधर डाउन साइड, बड़ी रैली यहाँ पे इग्नोर करना. इधर स्विंग ट्रेड भी कर रहे हो, इफ यू आर टेकिंग टुडे मैक्सिमम बाय BTST, या तो बेस्ट है इंट्राडे ट्रेड करो, सुबह एंट्री करो और शाम को खत्म करके जाओ ट्रेड. दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू. सो ओवरऑल ऑन द निफ्टी चार्ट कि यहाँ पे जब तक ये बाउंस बैक नहीं करेगा, इधर ब्रेकआउट नहीं होगा, आई एम नॉट इन द पोजिशनल व्यू. तो ओवरऑल यहाँ पे अभी क्या करना चाहिए कि यहाँ पे अभी ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है, बेरिश हरामी बना है. हाउ द बेरिश हरामी, इंडिया में हरामी वर्ड मतलब बहुत डेंजर वर्ड हो गया, गाली हो गई यू कैन से, बट हरामी वर्ड केम फ्रॉम द जापानीज. जापान में प्रेग्नेंट को बोलते हैं हरामी, ओके, सो दैट इज द वर्ड हरामी केम फ्रॉम. So India में like overall candlestick it is based on the Japanese candle. So उसका यहाँ पे pattern बन गया. It is look like a pregnant woman. That is called bearish harami. That is bearish pregnant woman. Simple. तो यहाँ पे बड़ी green candle है, followed by the negative candle है. ना high break किया है, ना low break किया है.
वही रेंज में है, तो इसको हम इनसाइडर कैंडल भी बोल सकते हैं। तो कल अभी आप यहाँ पे दो तीन चीजें कर सकते हो। आइदर कल यहाँ पे फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल अगर नेगेटिव बनी तो इंट्राडे में मैं शॉर्ट जा सकता हूं, सिंस यहाँ पे ट्रेंड लाइन के सपोर्ट में है, बेरिश हरामी बना हुआ है। सो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल के हिसाब से जो मैं आपको रेगुलर मेरे वीडियोस में बताता हूं, so on you need to open the 15-minute chart and this will be the Nifty future chart, not the spot chart. तो निफ्टी फ्यूचर चार्ट यहाँ पे ओपन करना है। पहला कैंडल अगर नेगेटिव फॉर्म हुआ कल सुबह, तो लुक आफ्टर फॉर द शॉर्ट अपॉर्चुनिटी टुमारो, एक्सेप्ट यहाँ पे बड़ा गैप डाउन नहीं हो, बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग इवन अ गैप डाउन टुडे बिकॉज वन इंडिकेटर आई हैव इट विच शोज मी कि मार्केट कल गैप अप या गैप डाउन हो सकता है या नहीं। So overall, I'm not expecting bigger gap down tomorrow, but market है, कुछ भी हो सकता है। भाव is your भगवान, simple। तो भाव जो दिखता है वो करना है हमको। तो यहाँ पे ओवरऑल 15 मिनट की कैंडल अगर नेगेटिव ओपन होती है, then I'll go for the short with the high stop loss. This is number one you can do. Number two you can do it। यहाँ पे जैसे मैंने बताया बेरिश हरामी बना हुआ है ऑन द डेली चार्ट, तो यहाँ पे इवन इनसाइडर कैंडल भी है। जो डेली चार्ट का कैंडल है वो इनसाइडर कैंडल है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में, अगर आपने मेरा फ्राइडे का वीडियो देखा होगा तो यू कैन जस्ट गो टू यूट्यूब ऑन द स्टॉक्स बॉक्स चैनल। यहाँ पे एक फ्राइडे का आपको वीडियो मिलेगा ऑन 6 फेब, यहाँ पे मैंने व्यू दिया हुआ है आज का। उसमें मैंने एशियन पेंट के लिए बताया था आपको वीकली चार्ट पे, दैट वाज कॉल्ड लाइक इनसाइडर कैंडल। तो सेम टाइप ऑफ पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है ऑन द डेली चार्ट ऑफ द निफ्टी। यहाँ पे इनसाइडर कैंडल भी इसको बोल सकते हैं। इनसाइडर कैंडल का मतलब क्या हुआ कि प्रीवियस कैंडल का हाई भी ब्रेक नहीं किया, प्रीवियस कैंडल का लो भी ब्रेक नहीं किया है। तो यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम जो बोल सकते हैं वो आज का लो आपका सपोर्ट हो जाएगा, आज का हाई आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा। दैट मीन्स अगर सपोर्ट ब्रेक करता है तो शॉर्ट कर सकते हो, रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो लॉन्ग कर सकते हो। तो आपको कल क्या करना है, पहला तो मैंने आपको बता दिया 15 मिनट की कैंडल अगर नेगेटिव बनी जो हम रोज करते हैं वो आप कर सकते हो। आइदर सेकंड अपॉर्चुनिटी आपकी डेवलप होती है कि मार्केट साइडवेज खुला, अपनी एंट्री नहीं बनी, जैसे आज निफ्टी में एंट्री नहीं बनी थी जो मैंने लॉन्ग की दी थी आपको। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ब्रेकआउट हो जाएगा, बट ब्रेकआउट नहीं हुआ ऑन द 15 मिनट चार्ट। इफ वी जस्ट चेक तो पहला कैंडल यहाँ पे नेगेटिव था, तो लॉन्ग एंट्री हमारी नहीं बनी, तो वी हैवंट टेकन द ट्रेड इन द मॉर्निंग सेशन। मैं आपको यहाँ पे पोस्ट मार्केट व्यू में मॉर्निंग के लिए कैसे ट्रेड करना है वो बताता हूँ। आई एम गिविंग यू, कल आप पूरा दिन कैसे ट्रेड कर सकते हो वो आज मैं बता रहा हूं आपको। कि पहला कैंडल है 15 मिनट का नेगेटिव बना तो शॉर्ट, सेकंड है आपका अगर आज का डे लो तोड़ता है तो शॉर्ट कर सकता हूं, इधर डे हाई क्रॉस करता है तो लॉन्ग कर सकता हूं। बट लॉन्ग कब करूंगा, जब 15 मिनट का कैंडल इधर आज के लो के नीचे क्लोज होगा, इधर आज के हाई के ऊपर क्लोज होगा, तो मैं लॉन्ग कर लूंगा। सो इट इज कॉल्ड अ इनसाइडर कैंडल। सो डेली चार्ट पे इट इज फॉर्मिंग अ इनसाइडर कैंडल। तो यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक करना होगा, जो यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है ये वाला, अगर ये ट्रेंड लाइन अगर डेली चार्ट पे जो स्पॉट पे हमने चेक किया, अगर स्पॉट पे वो ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है और 15 मिनट अगर रुक जाता है वहां पे, देन आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉन्ग। आइदर ये लो के नीचे चला गया और 15 मिनट वहां पे सस्टेन हो गया, देन आई एम लुकिंग फॉर द शॉर्ट। सो दिस इज द एंट्री नंबर 2। एंट्री नंबर 1 15 मिनट जो हम रेगुलर करते हैं। सेकेंड एंट्री इसके बेस पे आप ले सकते हो, अगर फर्स्ट एंट्री नहीं बनती है तो सेकेंड एंट्री इसके बेस पे आप ले सकते हो। थर्ड के क्लोजिंग क्या होगा, अगर क्लोजिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर हुआ तो परसों लॉन्ग हो जाएगा, वो कल की वीडियो में मैं आपको बता दूं। सो ओवरऑल पोजिशनल नहीं है यहाँ पे। ओवरऑल आप देखोगे तो मंथली चार्ट पे अभी भी यहाँ पे नेगेटिव कैंडल ही है, तीनों नेगेटिव कैंडल है। जब तक मंथली पे एक पॉजिटिव कैंडल नहीं बनेगा, अप ट्रेंड मार्केट का शुरू नहीं होगा, तब तक यही रेंज में घूमते रहेगा। आपको एक यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल दिखाएगा ऑन अ मंथली चार्ट, तो यहाँ पे ट्रेंड चेंज होगा और अपर की तरफ होगा। अंटिल दैट टाइम रेंज बाउंड ही होगा मार्केट, आइदर बीटीएसटी होगा या एसटीबीटी होगा, दैट इज बाय टुडे सेल टुमारो, आइदर सेल टुडे बाय टुमारो, आइदर इंट्राडे का ही मार्केट है। So this is the view for tomorrow on the Nifty. On the Bank Nifty front, if we just check कि Bank Nifty में भी यहाँ पे सेम ट्रेंड लाइन, यहाँ पे if you just check ये जो ट्रेंड लाइन है ये वाला आज सुबह ब्रेक किया उसने, it has tried to cross that trend line. Bank Nifty में आज क्या हुआ, Bank Nifty में on a 15 minute chart, if I am just checking it, यहाँ पे Bank Nifty went up after opening gap down, Bank Nifty ऊपर गया, जो बड़ी कैंडल निफ्टी में दिखी because of the Bank Nifty। तो बैंक निफ्टी ऊपर गया बट वो सस्टेन नहीं कर पाया।
एट एंड ऑफ द डे अगर डेली चार्ट पे मैं चेक करता हूं तो यहाँ पे नीचे ही क्लोज हुआ है ओवरऑल. So bank nifty also I'm looking after for the short tomorrow in case 15-minute negative candle बनती है तो. But bank nifty में since it is not the insider candle तो मुझे वेट करना पड़ेगा कि ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्रॉस होगा तो मैं लॉन्ग अपॉर्चुनिटी डे आफ्टर टुमारो आई विल एबल टू फाइंड इट. अदर देन दैट आई सिंपली वेट एंड वॉच ऑन द बैंक निफ्टी राइट. ओके, सो बैंक निफ्टी में कल अगर शॉर्ट बना तो करना, वरना जस्ट वेट एंड वॉच फॉर अ व्हाइल ऑन द बैंक निफ्टी. तो करना क्या है, इफ यू आर न्यू टू माय वीडियो, 15 मिनट का आपको चार्ट खोलना है, पहला कैंडल देखना है, पहला कैंडल अगर नेगेटिव बना गो फॉर द शॉर्ट. तो आज हमारा बैंक निफ्टी में ट्रेड क्या था, लॉन्ग का, विच इज ट्राइड टू गिव मी अ लॉन्ग. कि यहाँ पे 15 मिनट पे अगर मैं फ्यूचर निफ्टी देखता हूँ, फ्यूचर बैंक निफ्टी, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी था पहला कैंडल. यहाँ पे दिस इज द फर्स्ट कैंडल फॉर द बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी हैज गिवन मी डिसेंट मूव इन द मॉर्निंग. कि यहाँ पे लॉन्ग बना एट अराउंड 9:30 बजे के आसपास. एट अराउंड एंट्री वॉज डेवलप्ड अराउंड 41,687. आफ्टर दैट इट वेंट अप एज वेल, 200 पॉइंट ऊपर गया, बट बिफोर दैट इट हैज ट्रिगर्ड माय स्टॉप लॉस जहां से ऊपर जाना चाहिए था. सो इट इज आवर बैड लक टुडे. So overall, on the view of the bank nifty and nifty, which we have taken yesterday, out of the trades which I have given to you yesterday, how many trades I have given to you? Okay, so if we just check on the 6th Feb, on Friday's video, I have given you about 7 trades. Out of 7 trades, सिर्फ 2 ही ट्रेड एग्जीक्यूट हुए जो लॉन्ग के लिए एग्जीक्यूट हुए, दैट इज बैंक निफ्टी एंड बैंक ऑफ बड़ौदा. दोनों के आज स्टॉप लॉसेस हिट हो गए. So we have a stop loss day today. So overall दोनों में आज losses हुए. यहाँ पे in the Nifty I have taken the initial risk of 3,400. In the stock around 2 lakh capital I have taken the risk of 2,000. तो दोनों के stop loss hit हुए. We are in the loss of 5,000, that is small loss to the medium loss. So trading summary क्या है ये month का, from the 1st Feb after the budget I haven't included, as I told you the strategy I haven't included in this. So overall, if we just check, we are in the net loss of 619 rupees. तो 619 रुपए का लॉस है. Other than that, जो last month था, it was a fantastic month for us, which has created about 24.5% return. Okay, so यहाँ पे जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, you can check each and every video of mine. 9 Jan से मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया हुआ है on the Stock channel by BP Wealth. तो इफ यू कैन जस्ट चेक दिस चैनल ओवर हियर और वीडियोस देखोगे तो यहाँ पे ईच एंड एवरी ट्रेड मैंने लॉक किए हुए. कुछ दिन मेरे प्रॉफिट के हुए, कुछ दिन मेरे लॉसेस हुए, कुछ दिन बड़े प्रॉफिट मिले, कुछ दिन स्मॉल लॉसेस या मीडियम लॉसेस. बट यहाँ पे आप एक चीज मार्क करोगे, मुझे यहाँ पे एक भी बिग लॉस नहीं है. मैंने यहाँ पे कैटेगराइज किया हुआ है ऑन द डाउन साइड. इफ यू चेक तो यहाँ पे स्मॉल प्रॉफिट till 5,000 it is a small profit. Medium profit है between 5 to 10 on a capital of 3 lakh. If you can just check here, अगर 30 lakh है तो 50,000 to 1 lakh is the medium profit. Big profit about 10,000 on a 3 lakh capital, about 1 lakh on a 30 lakh capital. Then small loss, medium loss and big loss. आप देखोगे यहाँ पे एक भी मुझे 10,000 के ऊपर का जो 3 लाख का कैपिटल है या 1 लाख के ऊपर का ऑन अ 30 लाख कैपिटल, एक भी यहाँ पे आपको 10,000 के ऊपर का लॉस नहीं दिखेगा. मैक्सिमम लॉसेस टुडे, ओके, दैट इज अराउंड 5,400. आज ही मीडियम लॉस आया है. अदर देन दैट ऑल आर स्मॉल लॉसेस ओवर हियर. सो ओवरऑल दिस इज द रिस्क मैनेजमेंट फॉर यू. ये सारे दिन आपके प्रॉफिटेबल नहीं जाने वाले. कुछ दिन आपके पॉजिटिव जाएंगे, कुछ दिन आपके नेगेटिव जाएंगे. एट द एंड ऑफ द मंथ हाउ मच रिटर्न यू आर जनरेटिंग, दैट इज इंपॉर्टेंट. So that is the risk management part will work for you. So overall you can look after for this. So बैंक निफ्टी अगर 15 मिनट का ट्रेड अगर 15 मिनट का कैंडल नेगेटिव बनता है तो शॉर्ट करना. निफ्टी 15 मिनट का कैंडल नेगेटिव बनता है तो शॉर्ट करना. और अगर आज का हाई और लो क्रॉस होता है तो आइदर लॉन्ग आइदर शॉर्ट करना ऑन अ 15 मिनट चार्ट. So this is the view for the index. Now let's see the stocks over here. Okay, so I have told you Bank of Baroda और निफ्टी में मुझे लॉस हुए. So I have found out over here निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू दे दिया. Other than that, I have found out 6 stocks for you. First is Asian Paint जो कंटिन्यू है, जो वीकली चार्ट मैंने आपको बोला था कि थ्रू आउट द वीक जब भी ये लेवल क्रॉस होगा, जो करंट लाइक प्रीवियस वीक का जो हाई और लो है, जैसे ही वो हाई और लो ब्रेक करता है तो मैं लॉन्ग या शॉर्ट के लिए फाइंड करूंगा ऑन अ 15 मिनट चार्ट. तो यहाँ पे ओवर हियर
तो हाई और लो है, वो हाई लो के बीच में ही है अभी भी कैंडल, यू कैन सी ओवर हियर। सो ना इधर ना हाई क्रॉस किया है ना लो क्रॉस किया है। सो ऑन अ 15 मिनट चार्ट में देखते रहूंगा, जैसे ये ब्रेकआउट होगा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, I can look after for the long or a short opportunity on Asian Paint. So this is trade number one. Trade number two, I have found out. Second is M&M, which is breakout on monthly, weekly, daily. Target is 1427. So M&M is making all-time high. अगर मैं यहाँ पे check करूँगा. Okay, so this is M&M over here. Okay, let's open the daily chart for the M&M. तो डेली चार्ट पे यहाँ पे आप चेक करोगे, इट हैज गिवन यू अ ब्रेकआउट ऑन फ्राइडे और आज प्राइस रिजेक्ट हुआ, बट नीचे से आप देखोगे तो पुल बैक आया होगा। इट इज कॉल्ड लाइक अ हैमर पैटर्न। हैमर कैसा होता है? इट इज फॉर्मिंग लाइक दैट। हैमर पैटर्न है, नीचे से पुल बैक आ रहा है, बाय बैक आ रहा है। सो आई कैन लुक आफ्टर फॉर द लॉन्ग कि कल ये ट्रेंड चेंज हो सकता है वापस। सो आई कैन लुक आफ्टर फॉर द लॉन्ग अपॉर्चुनिटी ऑन M&M। और इवन आप यहाँ पे चेक करोगे ऑन द डेली चार्ट, तो अगर रिट्रेसमेंट ड्रॉ करता हूं तो M&M ऑलरेडी 38.2% पे रिट्रेस भी हो गया है। सो दिस इज द डबल कंफर्मेशन फॉर यू। सो कल अगर टर्न होता है और पहला 15 मिनट पॉजिटिव खुलता है, देन आई एम इंटरेस्टेड फॉर द लॉन्ग ऑन M&M विद द टारगेट ऑफ 1427, दैट इज टॉप 100% का जो फिब एक्सटेंशन का टारगेट है, बिटवीन 1427 टू 1466 is your target for the intraday or swing for the M&M. So look for the long opportunity on that. Then ONGC I'm looking for the short. Why? Because monthly, weekly showing negative trend. अगर ONGC का मैं यहाँ पे ट्रेंड देखता हूँ, so monthly chart अगर खोलता हूँ, so this is the monthly chart. तो यहाँ पे आप चेक करोगे रिट्रेस हो रहा है, 38% से नीचे जा रहा है, नेगेटिव कैंडल फॉर्म हुआ। so I'm expecting a short on ONGC on monthly. वीकली चार्ट पे चेक कर रहे हो तो वीकली चार्ट पे भी नेगेटिव कैंडल था, so short on the weekly. डेली चार्ट पे अगर चेक करता हूं तो डेली पे राइट नाउ लास्ट 3 दिन से ऑन थर्सडे, फ्राइडे एंड टुडे इट इज ट्राइंग टू गो अप। तीनों दिन पॉजिटिव कैंडल है, ओपन के बाद वहीं अटक जाता है। सो यहाँ पे चांसेस है कि अब ये लो के तरफ प्रेशर कर रहा है, सो देयर माइट बी अ चांस कि नीचे की तरफ ये ब्रेक हो जाए, बिकॉज वीकली एंड मंथली ट्रेंड इट इज शोइंग मी शॉर्ट। सो लुक फॉर द शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ऑन ONGC with the 15-minute negative candle. You can see over here I have written price is continuously rejecting on the daily chart since past 3 days. Look for short opportunity if negative 15-minute candle form. So look for the short opportunity on ONGC. Stock number 3, Adani sector. Adani sector आज perform किया from the low. Adani sector में से Adani port went up by 10% today, almost 10%, 9.34% plus today. And Adani Enterprise was recovered, and at the end it is closed at 0.89% down. So both stock I can look after, and Ambuja also you can look for the long. But pick of the stock is Adani Port. So let's see the Adani Port chart. So Adani Port chart पे आप check करोगे, Adani Port का जब chart check कर रहा हूँ, so it is retracing from the 61.8% fib extension level. और यहाँ पे अगर fib extension पे आप check करोगे तो retrace तो हो ही रहा है। और डेली चार्ट पे अगर मैं यहाँ पे यही चीज अगर डेली चार्ट पे रिट्रेसमेंट ड्रॉ करता हूं, जो ये लो यहां से लो है, दैट इज नॉर्मल रिट्रेसमेंट फ्रॉम दिस टू दिस। सो यू कैन सी ओवर हियर अदानी पोर्ट इज रिट्रेसिंग फ्रॉम 61.8% लेवल। यहाँ पे एक छोटा सा जो ATR था, कभी भी 61% ब्रेक करता है तो ATR वैल्यू तक नीचे जाता है, वहां से ऊपर चला जाता है। सो यहाँ पे इट इज टर्निंग अराउंड और हायर हाई क्लोज हुआ है। जो मैं फ्राइडे को बात कर रहा था कि ये फ्राइडे का ये हाई लेवल के ऊपर क्लोज होना चाहिए। सो अदानी पोर्ट हैज गिवन मी अ क्लोज टुडे। इवन हम वॉल्यूम भी अगर चेक कर लेते हैं, इसमें वॉल्यूम इज डाउन, दैट इज फाइन बिकॉज सेलिंग प्रेशर यहाँ पे कम हो रहा है। सो यहाँ पे आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉन्ग अपॉर्चुनिटी ऑन अदानी पोर्ट फॉर टुमारो विद द 15-minute पॉजिटिव। हाई रिस्क ट्रेड है गाइस, दिस इज द हाई रिस्क ट्रेड बिकॉज अदानी में न्यूज चल रहा है तो कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो अबाउट इट। So it is a high risk trade. Look for the long opportunity only and only if 15-minute candle is showing you positive, and check the risk to reward, check the stop loss, और accordingly you can create your position sizing. जो भी आज का मतलब कल का अगर 15 मिनट का कैंडल ग्रीन बनता है तो मैं लॉन्ग के लिए फाइंड करूंगा with the low stop loss. So this is trade number I think 4th on the stocks. Then Indus Tower I can look for the long.
वेरी क्विकली इफ यू जस्ट चेक इंडस टावर में यहाँ पे W बन रहा है. इफ यू जस्ट चेक द डेली चार्ट, बाइंग तो है ही इंट्राडे में, और यहाँ पे आप देखोगे तो W बन रहा है, बड़ा सा W बन रहा है. इफ आई जस्ट थ्रो ओवर हियर, यहाँ से यहाँ से रिट्रेस हुआ, यहाँ पे ये पॉइंट पे रिट्रेस हुआ और वो पॉइंट से वापस नीचे गया, डबल बॉटम बना और ये ब्रेकआउट हुआ. जो मैं निफ्टी में एक्सपेक्ट कर रहा था आज कि आज ये ब्रेकआउट हो जाएगा तो ऊपर की तरफ चांसेस हो जाएंगे, वो चीज यहाँ पे इंडस टावर में हुई है. ये वाला लेवल ब्रेक हो गया. ओके, इफ आई रिमूव दिस, ओके, सो ये वाला जो लेवल है दैट इज अराउंड रफली हियर, ये वाला लेवल है वो ब्रेक हो गया है और आज क्लोजिंग ऊपर है. सो एक्सपेक्टिंग अ लॉन्ग विद द 15-minute पॉजिटिव कैंडल. देन लास्ट स्टॉक ऑफ द डे रिलैक्सो फुट, ये कंटिन्यूएशन में लोअर लो बना रहा है. इफ यू कैन जस्ट चेक, यहाँ पे रैली आया, ऊपर गया, रिट्रेस हुआ. इफ यू जस्ट चेक द रिट्रेसमेंट लेवल फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, इट इज रिट्रेसिंग. कंटिन्यूएशन पैटर्न बोलते हैं इसको, कंटिन्यूएशन पैटर्न बोलते हैं, जिसमें हम बोलते हैं कभी भी स्टॉक जाता है नीचे या ऊपर, जब डाउन ट्रेंड होता है या अप ट्रेंड होता है, तो एक झटके में ऐसे 90 डिग्री आपको अदानी पोर्ट जैसे न्यूज होगा तो ही मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा. जनरली जो स्टॉक अगर डाउन ट्रेंड में है, इवन अदानी पोर्ट भी जब नीचे गया या अदानी एंटरप्राइज नीचे गया, तो यहाँ पे कभी भी रैली कैसे लेता है, यहाँ पे एक रैली लेता है, फिर एक पॉज लेता है, प्रॉफिट बुकिंग आता है, वापस रैली लेता है, पॉज लेता है, रैली लेता है, पॉज लेता है. सो इट इज मूविंग लाइक दैट ओनली. इफ यू कैन जस्ट चेक हियर, रैली पॉज, रैली पॉज, रैली पॉज, रैली. So it is called a continuation pattern over here. So look for the short opportunity on Relaxo footwear. If 15-minute negative candle form, because it's got target on the downside, I am checking it. There is no support on the left. I am expecting a fall on this. और बड़े volume के साथ आज गिरा है. So that is the major reason I am expecting a short on Relaxo footwear tomorrow. So that's all guys. So Nifty and Bank Nifty long short जो भी बनेगा उसमें, एशियन पेंट भी वीकली चार्ट का जो लेवल बनेगा उसके ऊपर वीकली चार्ट का जो हाई लो है वो ब्रेक करेगा, तो M&M, अदानी पोर्ट एंड इंडस टावर आई कैन लुक फॉर द लॉन्ग, and ONGC and Relaxo footwear I can look for the short tomorrow. So that's all from my side today. So for more such ideas on stock market, make sure you subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the regular updates.